ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ بابا اٹھیں، آپ کی دوائی کا ٹائم ہو گیا ہے۔ اس نے ناشتہ بنا کر ٹرے سائڈ پر رکھی اور اپنے بابا کو آواز دینے لگی۔ کیا ہو گیا ہے بابا؟ آج آپ کو اتنی زیادہ نیند آ رہی ہے؟ آج سے پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اس نے تشویش سے آگے بڑھ کر اپنے بابا کا ہاتھ ہلایا، تب بھی انہوں نے جواب نہیں دیا۔ اللہ اکبر! اس کے منہ سے بآواز بلند نکلا۔ اس نے فوراً سے ان کی شوگر چیک کی جو بہت ہی لو نکلی۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ بے تحاشا رونے لگی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا فون اٹھایا اور ایمبولینس کو کال ملائی۔ فرحانہ باجی، میں کیا کروں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ مجھے بابا کو کہاں لے جانا چاہیے؟ اس نے فوراً سے فرحانہ کو بھی ساتھ ہی کال ملائی اور پوچھنے لگی۔ تم ایک کام کرو، انہیں سٹی ہاسپٹل لے آؤ، وہاں ہمارے جاننے والے ہیں، تم وہاں ان سے علاج کروا لینا۔ فرحانہ باجی نے اسے مشورہ دیا تو وہ فوراً سے ان کے مشورے پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ بابا، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ اس نے ان کا ماتھا چوما اور پھر انہیں ہاسپٹل پہنچایا۔ دیکھیں، آپ کے بابا کی کنڈیشن بہت زیادہ سیریس ہے، ان کو آپریشن کرنا ضروری ہے، اس لیے ہمیں 5 لاکھ روپے کی ضرورت ہے۔ وہ ہاسپٹل کے ٹھنڈے کوریڈور پر یہاں سے وہاں ٹہل رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے بے تحاشا آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ بے حد اکیلی تھی، اس کا وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ تبھی ڈاکٹر نے آ کر اس سے کہا تو وہ حیرانی سے انہیں دیکھنے لگی۔ کون سا آپریشن؟ کس چیز کا آپریشن؟ وہ بے تحاشا رو رہی تھی۔ دیکھیں، آپ کاؤنٹر پر جائیں، وہاں آپ کو معلومات مل جائیں گی۔ ڈاکٹر نے یہ کہہ کر اپنا فرض ادا کر دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ میرے بابا اس وقت ICU میں ہیں، ڈاکٹر نے ارجنٹ آپریشن کا کہا ہے، آپ پلیز مجھے ساری تفصیل بتا دیں۔ اس نے تفصیلات پوچھی تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ پلیز آپریشن شروع کر دینا، میرے بابا کی حالت بہت نازک ہے، میں پیسوں کا انتظام کر دوں گی، لیکن ابھی ان کا آپریشن ایمرجنسی میں کرنا ہے۔ وہ روتے ہوئے التجا کرنے لگی۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ جانتی ہیں کہ آپ مجھ سے کس بارے میں عرض کر رہی ہیں؟ اس بارے میں کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ ہاسپٹل کی پالیسی ہے کہ جب تک پیسے جمع نہ ہوں کسی مریض کا علاج نہیں کروایا جا سکتا۔ اگر آپ یہاں علاج افورڈ نہیں کر سکتی تو اپنے بابا کو لے کر سرکاری اسپتال میں چلے جائیں، وہاں مفت علاج ہو جائے گا اور وقت بھی ضائع نہیں ہوگا۔ آپ نے یہاں آ کر وقت ہی ضائع کیا ہے، یہاں پیسوں کے بعد ہی علاج کیا جائے گا۔ برے برے منہ بناتے اس نے کہا تو وہ اپنی جگہ جیسے جم سے گئی، آنسوؤں میں تیزی آ گئی۔ مس دانین، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ کیا ہوا؟ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ شناسا سی آواز پر وہ پلٹی تو سامنے ہی ڈاکٹر حماد کھڑے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی اس کا سانس اٹک سا گیا۔ میرے بابا اس وقت ICU میں زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں، اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم پیسوں کے بعد علاج کروائیں گے۔ وہ اپنی بات پر مکمل بھی نہ کر سکی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ آپ میرے کمرے میں آئیں، جلدی، ہری اپ۔ ڈاکٹر حماد نے اس کی بات کو سمجھ کر اسے اپنے کمرے میں آنے کے لیے کہا۔ میں آپ کے بابا کا علاج کر سکتا ہوں اگر آپ میری ایک شرط پوری کریں تو۔ وہ آنسوؤں کے ساتھ رو رہی تھی۔ اس نے جب ڈاکٹر حماد کے منہ سے یہ بات سنی تو نظریں اٹھا کر ان کی طرف دیکھا اور پتھر کی ہو گئی۔ یہ انسان ہر بات میں اپنا فائدہ کیوں سوچتا تھا؟ کیا اسے ذرا برابر بھی اندازہ نہیں کہ میرے بابا زندگی اور موت کے بیچ میں موجود ہیں اور یہ اپنی شرطیں منوا رہا ہے؟ ایک دم سے اس کے دل میں ڈاکٹر حماد کے لیے بدگمانی پیدا ہونے لگی۔ کیا ہوا؟ کیا سوچ رہی ہیں آپ؟ اسے خاموش دیکھ کر ڈاکٹر حماد نے بغور اس کا جائزہ لے کر کہا۔ کیسی شرط ہے آپ کی؟ اس نے لہجے کو مضبوط بنایا اور
और फिर उसने डॉक्टर हमाद की शर्ट सुनकर एक लम्हे के लिए अपने पैरों से जमीन से रखती महसूस की। सोच लें, अगर आप मेरी यह शर्त पूरी कर दें तो आपके बाबा का इलाज अभी और इसी वक्त शुरू हो जाएगा। मैं बैंक से पैसे ट्रांसफर कर दूंगा और मैं तो वैसे भी यहाँ का डॉक्टर हूं। मेरे लिए यहाँ की कोई पॉलिसी काम नहीं करेगी, बाकी आपकी मर्जी है। कहते साथ ही वो जैसे ही सीट छोड़कर खड़ा हुआ, एकदम से दानीन भी खड़ी हो गई। मुझे आपकी शर्त मंजूर है। उसने एकदम से अपना सर झुका लिया। उसके पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। दैट्स अ वेरी वाइस ऑफ यू, उसने डॉक्टर हमाद को कहते सुना और उसके बाद जमीन पर बैठती ही चली गई। ये मैंने क्या कर दिया? वो बेतहाशा रोने लगी। मुझे माफ कर दीजिएगा बाबा। एक अज़म के साथ वो उठी, अपने आंसू साफ किए और मरे मरे कदमों से बाहर निकल गई। सर, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने किया ही क्या है? मैंने कोई गड़बड़ नहीं की। मैंने ये फाइल यहीं रखी थी। वो एकदम से रुहासी हो गई क्योंकि उस पर इल्जाम लगा था और वो ये इल्जाम बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। आप अभी भी अपनी ही बात कहे जा रही हैं। सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर वाज़ेह हो रहा है कि फाइल यहां मौजूद है ही नहीं। सर, आदिल ने उसे डांटा तो वो उन्हें देखकर रह गई। ये उस पर कैसा इल्जाम था वो समझ ही ना सकी। दानीन, अगर सर कह रही हैं तुम्हें उनका इल्जाम मान लेना चाहिए। वो झूठ तो नहीं बोल रहे होंगे ना? ये नताशा थी जो वो कमरे में दाखिल हुई और देखा कि दानीन को डांट पड़ रही है तो एकदम से उससे कहने लगी, जब मैंने कोई जुर्म किया ही नहीं तो फिर मैं क्यों कबूल करूं? सर आदिल ने उसकी इस बात पर उसे सर से लेकर पैर तक देखा। तो गोया आप मुझे और नताशा दोनों को झूठा साबित कर रही हैं। आप ये भी तो कर सकती हैं कि अपनी गलती माने, हम दोनों से माफी मांगे, लेकिन नहीं, आप अपनी जिद पर अड़ी हुई हैं। सर आदिल की बात सुनकर उसके हाथों के तोते ही उड़ गए। सर, अगर मेरी गलती होती तो मैं जरूर माफी मांग लेती, लेकिन मैं आपसे कह रही हूं ना, आप मेरी बात का यकीन करें। मैंने वो फाइल एहतियात से इसी लॉकर में रखी थी, लेकिन अब नहीं है तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। मैं 24 घंटे ऑफिस में मौजूद नहीं होती। अलबत्ता ये है कि जब मैं फाइल इस लॉकर में रख कर गई तो वो वहीं मौजूद थी। बात का मुझे नहीं पता। दानीन कभी झूठ बोले ये हो ही नहीं सकता था, लेकिन सर आदिल और नताशा के दिल में क्या चल रहा था वो जान ना सकी। ठीक है, तो फिर आप अभी रिजाइन दे दें। हमने वैसे भी इस पोस्ट के लिए आपसे बेहतर और पढ़ाई में आपसे अच्छे उम्मीदवार को मुंतखब कर लिया है। सर आदिल ने अचानक उसे फैसला सुनाया तो वो उन्हें देख कर रह गई। सर, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपको मालूम है कि मेरा एक बूढ़ा बीमार बाप है। मुझे अपने घर का खर्चा चलाना है। मैं ये जॉब नहीं छोड़ सकती। आप मुझे क्यों निकाल रहे हैं? उसने नम आंखों से सर की तरफ देखा। वो इस वक्त बेबसी की इंतहा पर थी। मैंने कह दिया है, आप अपना रिजाइन कल दे दीजिएगा। कल ऑफिस में आपका आखिरी दिन होगा। इस गलती को मैं माफ नहीं कर सकता। अब आप यहां से जा सकती हैं। सर आदिल ने इंतहाई नागवारी से कहते उसे बाहर जाने का इशारा किया। सर, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करें। मैं कहां जाऊंगी? मैं माफी मांगती हूं। मैं दोबारा से आपको फाइल तैयार करके दे दूंगी, लेकिन आप इस तरह मुझे जॉब से तो ना निकालें। उसके आंसू तवातुर से बहने लगे, लेकिन सर आदिल और नताशा उसे देखकर तंजिया हंसी हंसने लगे। आप यहां से जाएं वरना मुझे सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा। सर आदिल का लहजा एकदम से बदला तो उसने फौरन से अपना बैग उठाया और मुंह पर हाथ रखकर रोते हुए बाहर निकल गई। सड़क पर चलते हुए भी उसका जहन यही सोच रहा था कि वो क्या करे। वो अपने बाबा को क्या बताएगी कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। यही सोच सोचकर वो थक हार कर फुटपाथ पर ही बैठ गई और अपना सर घुटनों में देकर
ज़ारो कतार रोने लगी। या अल्लाह तू ही मेरी मदद कर, मैं क्या करूँगी, मेरे लिए बहुत मुश्किल वक्त है। वो 20 साल की थी और जिंदगी ने उस पर बहुत से सितम किए थे। इस वक्त वो आसमान की जानिब सर उठाए इंतहाई बुरे दिल के साथ दुआ मांग रही थी। अब्बा को पता चलेगा तो क्या होगा। आज मैंने देखा था उनकी दवाई की शीशी भी खत्म होने वाली है। ये सोच आते ही उसने जैसे ही अपना पर्स खोल कर देखा तो एक 500 का नोट जगमगा रहा था। उसका दिल कांप कर रह गया। उसके अब्बा की दवाई पूरे 5,000 रुपए की थी और उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो उनकी दवाई खरीद सके। या अल्लाह, तू ही मेरा वाहिद आसरा है। अगर तूने मेरी मदद ना की तो मैं रुस्वा हो जाऊंगी। अपने आंसू साफ करते वो खड़ी हो गई और मरे मरे कदमों के साथ घर की जानिब जाने लगी। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान, कैसे हैं आप? आपने दवाई ले ली है ना? मैं जल्दी से खाना बनाकर लगाती हूँ। उसने अंदर आते ही अपने बाबा जान की तबीयत पूछी और फिर बावर्ची खाने की तरफ चली आई। इस वक्त कौन हो सकता है? अभी वो बावर्ची खाने में आई ही थी और सालन बनाने के लिए कढ़ाई चूल्हे पर रखी थी कि दरवाज़ा बजा। क्या हो गया है बीबी? पूरे 3 महीने हो गए हैं किराया नहीं दिया। अगर इस दफ़ा किराया नहीं दिया पूरे 4 महीनों का तो ये घर छोड़कर जाना होगा। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने मालिक मकान मौजूद था, जिसने उसे धमकी आमेज अंदाज में कह दिया कि वो उसका किराया भर दे। देखिए अंकल, मैं आपका किराया भर दूंगी। हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं होंगे। बस आप थोड़ा सा सब्र कर लें। आप वालिद साहब की तबीयत तो जानते हैं ना। उसने एक और महाज पर लड़ने की कोशिश की, लेकिन सब बेसूद। मैं इस बात के अलावा कुछ नहीं जानता कि तुमने 4 महीने का किराया नहीं भरा। इस महीने की 10 तारीख को तुम 4 महीने का किराया इकट्ठे भर दो, वरना मैं तुम्हारा सामान उठाकर फेंकवा दूंगा। मालिक मकान बेतहाशा गुस्से का शिकार नजर आ रहा था। उसने जब ये सुना तो एकदम से खामोश होकर देखने लगी। मालिक मकान तो धमकियां देकर चला गया, लेकिन उसकी रूह छलनी छलनी हो गई। नवेरा, अब तुम ही मुझे बताओ मैं क्या करूं। मुझे सर आदिल ने बिना किसी वजह के नौकरी से निकाल दिया। शायद इसी बात का बदला ले रहे हैं। जब मैंने उनकी पोल बड़े सर के सामने खोल दी थी, उन्होंने मुझे ही जॉब से निकाल दिया। मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने सच क्यों कहा। कम से कम नौकरी तो चलती रहती, घर के अखराजात तो निपटते रहते। लेकिन अब मैं तो हालात हो गए हैं कि भीख मांगने की कसर रह गई है। ये कहते ही वो फूट फूट कर रोने लगी तो नवैरा को बेतहाशा अफसोस हुआ। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक जॉब है। तुम एक 3 साल की बच्ची को तो पढ़ा ही सकती हो ना। हमारे जानने वाले हैं डॉक्टर हमाद, उन्हें अपनी बेटी के लिए ट्यूटर की ज़रूरत है, लेकिन उनकी बहुत ज़्यादा शराइत हैं। तुम वहाँ ट्राई कर लो, तनख्वाह बहुत अच्छी है। महीने के 30 से 35 हज़ार रुपये मिल जाएंगे, और एक ट्यूटर के लिए तो ये बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर थोड़ा सा इंटरव्यू में तुम्हें तंग करेंगे, लेकिन तुम्हें मजबूत रहना है, क्योंकि आज तक जो कोई भी इंटरव्यू के लिए वहाँ गया है उसे शिकस्त का सामना ही करना पड़ा है। उनके मयार पर कोई पूरा नहीं उतर सकता। तुम मजबूर हो, मैं कहती हूँ तुम वहाँ ट्राई करो। क्या पता तुम्हारी किस्मत तुम्हें वहाँ ले जाए और तुम्हें डॉक्टर हमाद अपनी बेटी के लिए रख लें। क्या कहती हो? ट्राई तो करना चाहिए ना। उसकी दोस्त नवैरा ने उसे एक नई राह दिखाई तो वो फौरन से तैयार हो गई। मैं जाऊंगी, मैं ज़रूर जाऊंगी। तुम उनका नंबर मुझे दे दो, उनका पता भी मुझे बता दो। मैं वहाँ जाकर इंटरव्यू दे आऊंगी। बाकी उनकी मर्जी है वो मुझे सिलेक्ट करें या ना करें, लेकिन अपने बाबा के लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। एकदम से पुरजोश हो गई और नवैरा ने फ़ोन बंद करते ही उसे एड्रेस और फ़ोन नंबर दोनों दे दिया था। उसने जैसे ही उस नंबर पर फ़ोन मिलाया
تو ایک گھمبیر اور بھاری آواز نے اس کا استقبال کیا۔ اس آواز میں اس قدر چاشنی گھلی ہوئی تھی کہ چند لمحے تو وہ خاموش ہو کر رہ گئی۔ ہیلو، کون بات کر رہا ہے؟ ایک بار پھر سے ڈاکٹر حماد کی آواز اسپیکر سے گونجی تو وہ جیسے ہوش میں آئی۔ جی، میں آپ کی بیٹی کے لیے ٹیوٹر کا انٹرویو دینا چاہتی ہوں۔ مجھے کس وقت آنا ہوگا اور آپ کی کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں؟ اس نے اپنے لہجے کو پروفیشنل رکھتے ہوئے کہا تو اسے ایسے لگا جیسے ڈاکٹر حماد مسکرائے ہیں۔ ان کی باتوں کے اتار چڑھاؤ سے اس نے ایسا ہی محسوس کیا۔ ریکوائرمنٹس تو آپ جب انٹرویو دینے آئیں گی تبھی آپ کو پتہ چلے گا۔ ویسے جس کسی نے بھی آپ کو میرا پتہ بتایا ہے اس نے یہ بھی بتایا ہوگا کہ میرے انٹرویو میں کوئی اتنی آسانی سے پاس نہیں ہوتا، چنانچہ آپ کی کوشش بیکار ہوگی۔ ڈاکٹر حماد نے ایک دم سے اسے کہا تو ان کی بات پر وہ ششدر رہ گئی۔ یہ بھلا کیسا انسان تھا جو نوکری بھی دے رہا تھا اور نوکری کے لیے اپلائی کرنے والے کو بھگا بھی رہا تھا؟ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ دانی نے ایک دم سے فون کان سے ہٹا کر غصیلی نگاہوں سے فون کو دیکھا۔ اسے ڈاکٹر حماد پر بے تحاشا غصہ آیا۔ ضروری نہیں ہے کہ میں بھی فیل ہو جاؤں، مجھے اپنی صلاحیتوں پر اعتماد ہے اور میں انٹرویو دینا چاہتی ہوں۔ اس نے ڈاکٹر حماد کی بات پر مضبوط لہجے میں کہا تو اسے بے ساختہ بلند ہونے والا کہکہا سنائی دیا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ اپنی قسمت آزمانا چاہتی ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ آپ شام کے 6 بجے میرے گھر تشریف لے آئیے۔ جس نے آپ کو اس نوکری کے بارے میں بتایا ہوگا اس نے آپ کو گھر کا پتہ بھی بتایا ہوگا، سو آپ وہیں پر تشریف لے آئیں۔ کہتے ساتھ ہی ڈاکٹر حماد نے اس کی بات سنے بغیر ایک دم سے فون بند کر دیا اور دانین اس شخص کے بارے میں سوچ کر رہ گئی کہ کس قدر عجیب شخص تھا یہ۔ بابا، میں کام سے جا رہی ہوں، آپ نے کھانا کھا لیا ہے، دوائی لے کر آرام کر لیں، میں رات کو 8 بجے تک واپس آ جاؤں گی۔ اس نے اپنے بیگ میں چند ضروری چیزیں رکھتے کہا تو اس کے بابا نے اسے غور سے دیکھا۔ کچھ ہوا ہے نا آج آفس میں؟ تو بہت چپ چپ ہو۔ میری بلبل آج چہچہا نہیں رہی بلکہ خاموشی سے میری خدمت کر رہی ہے۔ کیا ہوا، کوئی بات ہے کیا؟ اس کے والد کریم صاحب نے اپنی نکاہت بھری آواز میں کہا تو اس نے مسکرا کر ان سے کہا، ابو نوکری چھوٹ گئی ہے لیکن میں کوشش کر رہی ہوں دوبارہ مل جائے گی، آپ فکر نہ کریں، اسی سلسلے میں جا رہی ہوں۔ اس نے اپنا بیگ کندھے سے لٹکایا اور انہیں اللہ حافظ کہہ کر گھر سے باہر نکل آئی۔ یا اللہ تو میری مدد کر۔ ڈاکٹر حماد کے رویے سے تو ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ مجھے نوکری دیں گے۔ انہوں نے تو مجھے جانے بغیر ہی صاف ہری جھنڈی دکھا دی ہے، لیکن تو مسبب الاسباب ہے۔ اگر میری وہاں بات بن جاتی ہے تو میں سارے اخراجات اٹھا سکوں گی، سارے راستے، یہاں تک کہ ٹیکسی میں بیٹھنے کے بعد بھی وہ یہی سوچتی رہی۔ ٹیکسی ایک پوش علاقے کے پاس آ کر رک گئی۔ اس علاقے میں بنے گھر کو دیکھ کر اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ ایک سے ایک خوبصورت بنگلے قطار سے بنے ہوئے تھے۔ اس نے بنگلہ نمبر 10 کی گھنٹی بجائی اور انتظار کرنے لگی۔ ایک ملازمہ نے دروازہ کھولا اور اسے ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا۔ السلام علیکم، تو آپ ہیں جنہوں نے مجھے فون کیا تھا؟ ڈرائنگ روم کے داخلی دروازے سے ڈاکٹر حماد اندر داخل ہوئے تو انہیں دیکھ کر وہ رہ گئی۔ وہ 30-35 سال کے اونچے لمبے قد کے خوبصورت سے نوجوان تھے جسے دیکھ کر کوئی بھی اپنا دل ہارنے پر تیار ہو جاتا۔ دانین کے دل نے بھی ایک دھڑکن مس کی۔ وہ تھے ہی اتنے ہینڈسم اور خوبصورت کہ کوئی ایک نظر ڈالنے کے بعد ان پر دوسری نظر ڈالنے کا بار بار دل ہوتا۔ دانین نے ایک دم سے اپنی نظریں جھکا لی۔ جی میں ہی ہوں۔ اس نے اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے ڈاکٹر حماد سے نظریں ملائے بغیر کہا تو وہ مسکرا دیے۔ یہ پہلی لڑکی تھی جو بے حد خوبصورت تھی اور شرما بھی رہی تھی، یعنی اس کی آنکھوں میں حیا موجود تھی۔ وہ ڈاکٹر حماد کو نظر بڑھ کر نہیں دیکھ رہی تھی بلکہ اعراض برت رہی تھی۔ یہاں انٹرویو نہیں ہوگا، آپ میرے ساتھ چلیں،
मैं आपको बताता हूं इंटरव्यू कहाँ होगा। डॉक्टर हमाद ने गहरी नजरों से उसे देखते हुए कहा और अपनी पैंट की जेबों में हाथ डालते आहिस्ता आहिस्ता करके सीढ़ियां चढ़ने लगे। यहां तक कि सेकंड फ्लोर के दूसरे रूम को खोला तो वहां बच्चों की एक पूरी दुनिया आबाद थी। इंतहाई खूबसूरती और नफासत से कमरा सजाया हुआ था, जहां 2 कुर्सी टेबल रखे हुए थे। डॉक्टर हमाद ने एक कुर्सी खींचकर उस पर बैठते हुए उसे दूसरी कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। जी, तो मिस दानीन, क्या करती हैं आप और आपको ये जॉब चाहिए? उसका इंटरव्यू शुरू हो चुका था। उसने अपना गला खंगार कर दुरुस्त किया। मैंने ग्रेजुएशन कर ली है और अपने घर का खर्चा उठाती हूं। मेरे पास मेरे बाबा के अलावा और कोई नहीं है। इससे पहले कि वो अपनी बात मुकम्मल करती, डॉक्टर हमाद ने एकदम से हाथ उठाकर उसको बात करने से रोक दिया और अचानक से वहां रखा ग्लास नीचे गिर पड़ा, जिसने कारपेट पर पानी फैला दिया। साथ ही साथ वो मेज भी गंदा हो गया जहां वो दोनों बैठकर बात कर रहे थे। ओह, सो सॉरी, लेकिन क्या आप ये साफ कर सकती हैं? एकदम से डॉक्टर हमाद ने पास रखे टिश्यू पेपर उठाए और उसकी तरफ बढ़ा दिए। दानीन ने टिश्यू पेपर लेकर पहले मेज को साफ किया और फिर कारपेट को उठाया, फिर मदद तलब नजरों से हमाद की तरफ देखा। वॉशरूम इस तरफ है। उसने कारपेट का वो टुकड़ा ये सुनते ही वॉशरूम के अंदर रख दिया और जैसे ही बाहर आई तो डॉक्टर हमाद उसे कड़ी निगाहों से देखने लगे। आपने उसे वॉश क्यों नहीं किया? एकदम से ये सवाल सुनकर उन्हें वो हैरानी से देखने लगी। देखिए, मेरी बेटी अनाया बहुत शरारती है। वो अक्सर ऐसे पानी गिरा देती है और अगर ट्यूशन के वक्त उसने पानी गिराया तो जाहिर है ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसे खुद भी इस तरह की सफाई सिखाएं। और उससे पहले तो मैं ये देखना चाहता हूं कि आप में खुद में कितने मैनर्स हैं। एकदम से जब उसने ये सुना तो उसके सर पर 7वां आसमान गिर गए। तो गोया उन्हें ट्यूटर चाहिए थी या मेड, वो ये समझ ना सकी। मेरे ख्याल से मैं यहां ट्यूटर की जॉब के लिए आई हूं। उसने सिर्फ सोचा नहीं बल्कि अपने लफ्जों से उसको आगाह भी कर दिया। जी, मैंने आपसे कहा था ना कि ये इंटरव्यू हर कोई पास नहीं कर सकता। सब्र चाहिए, बर्दाश्त चाहिए। खैर, मेरे ख्याल से तो ट्यूशन के वक्त वो जो भी हंगामे करेगी उसे आपने ही संभालना है। आया को इस दौरान आराम मिलना चाहिए। क्या कहती हैं? ठीक है? वो इसे एक अजीब साइको शख्स लगा जो ना जाने उसे क्या कुछ कह रहा था, पर वो मजबूर थी। सब कुछ सुनने के लिए खड़ी उसे देखने लगी। ओके, हैव अ सीट प्लीज। मिस दानीन, हम अगले मौजू पर बात करते हैं। उसने दानीन को बैठने का कहा और खुद कमरे में टहलने लगा। ये बताएं, आप अनाया के टेंट्रम को कैसे ट्रीट करेंगी? एकदम से उसने मुड़कर सवाल किया तो वह हैरान रह गई। इस उम्र में बच्चे जिद्दी होते हैं। पहले देखेंगे कि वो किस चीज की जिद कर रहे हैं। अगर वो उनके हक में बेहतर हुई तो उन्हें थोड़ी देर के लिए दे दिया जाएगा, और अगर वो उनके हक में बिल्कुल बेहतर ना हुई तो उनका ध्यान बटा दिया जाएगा और उन्हें किसी और तरफ लगा दिया जाएगा। और फिर जब वो टेंट्रम शो करना शुरू कर देंगे तो उन्हें इस चीज के ड्रॉबैक्स बताए जाएंगे, फायदे नुकसानात सिखाए जाएंगे, ताकि आइंदा वो जिद करने से पहले सोच लें। दानीन ने मुफस्सिल जवाब दिया तो वो उसे देख कर रह गया। आज से पहले ऐसा जवाब किसी ने नहीं दिया था। वेरी गुड, सो स्वीट ऑफ यू, आई एम इम्प्रेस्ड। उसके जवाब से खुश हुआ तो वो भी मुश्किल से मुस्कुरा सकी। मुस्कुराने में कंजूसी से काम मत लीजिएगा प्लीज, वरना मेरी अनाया भी ऐसे ही कंजूसी से मुस्कुराएगी। एकदम से उसे नजरों के हिसार में लेकर डॉक्टर हमाद ने कहा तो वो जुजुब सी होकर खुद में सिमटने लगी। अगर अनाया का मूड पढ़ने का नहीं हो रहा होगा तो आप उसे किस तरह पढ़ने के लिए आमादा करेंगी? एक और मुश्किल सवाल उसकी पेश खिदमत हाजिर था। दानीन का दिल चाहा वो सामने खड़े शख्स का मुंह तोड़ कर रख दे। क्या वो उसकी तरबियत के लिए उसे रख रहा था
या उसे पढ़ाने के लिए? वो समझ ना सकी। पहले तो मैं उसे समझाऊंगी कि पूरे दिन में चंद घंटे पढ़ने के होते हैं, इसलिए उसे पढ़ना चाहिए। अगर वो फिर भी आमादा नहीं होगी तो मैं उसे 10-15 मिनट की ब्रेक दे दूंगी और उससे कहूंगी कि जो कुछ करना है उस टाइम पीरियड में करना है। फिर अगर वो फ्रेश हो जाए कि हम दोबारा से कंटिन्यू करेंगे, और अगर वो फ्रेश नहीं होगी तो मैं उससे कोई एक्टिविटी करवा लूंगी। दानी ने यह जवाब भी तफसील से दिया तो डॉक्टर हमाद जो टहल रहे थे एकदम से कुर्सी पर आकर बैठ गए। आप मुझे मुतासिर कर रही हैं। आपके जवाब तमाम ट्यूटर से बहुत ज़्यादा मुफस्सिल और मुतासिर कुन हैं। फ़ोन पर तो मैं यही समझा था कि आप इंटरव्यू के लिए नहीं आएंगी, लेकिन आपने हिम्मत की, मेरे सवालात के जवाबात दिए। उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं इस इंटरव्यू को ज़्यादा पेचीदा बना देता, लेकिन आपने शुरू में ही मेरा दिल जीत लिया। इसलिए मैं आपको अपनी बेटी अनाया के ट्यूटर के तौर पर अपॉइंट कर रहा हूँ। उसने उसे लेटर बनाकर दे दिया और उसे समझा दिया कि वो कल से ज्वाइन कर सकती है। एक्सक्यूज मी सर हमाद। इससे पहले कि वो कुछ कहती, डॉक्टर हमाद ने मुस्कुराकर उसकी तस्हीह की। डॉक्टर हमाद मुझे डॉक्टर हमाद कहते हैं। ओके डॉक्टर हमाद, क्या मैं आपकी बेटी अनाया से मिल सकती हूँ? क्या आप श्योर हैं कि आप वाकई में उससे मिलना चाहती हैं? डॉक्टर हमाद के अचानक सवाल पर वो हैरान रह गई। जी बिल्कुल, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ मेरी स्टूडेंट कैसी है। थोड़ी सी मुलाकात में उसकी मेंटलिटी पता चल जाए तो उसके मुताबिक ही उसे पढ़ाऊंगी। उसने एकदम से अपना उज़र पेश किया तो डॉक्टर हमाद ने उसे अपने पीछे चलने का इशारा किया। वो बेहद खामोश हो गए। उनके चेहरे का रंग बुझ गया। ये रही मेरी बेटी अनाया। उन्होंने कमरे का दरवाज़ा खोला और जैसे ही दानीन की नज़र सामने बैठी लड़की पर पड़ी तो एक लम्हे के लिए उसकी आंखों में नमी उतरने लगी। वो छोटी सी 3 साल की बच्ची अनाया व्हील चेयर पर बैठी हुई थी और उसे देखकर मुस्कुरा भी ना सकी, क्योंकि वो एक एबनॉर्मल बच्ची थी। आपकी बेटी बहुत प्यारी है, मैं इसे पढ़ा लूंगी, मैं इसे दिलो जान से पढ़ाऊंगी। दानी ने उसके सामने ही अहद किया तो वो हैरान रह गया और फिर उसके चेहरे पर भी एक जानदार मुस्कुराहट उभरी। बहुत से इंटरव्यूअर यहीं फेल हो जाते हैं क्योंकि उन्हें मेरी बेटी पसंद नहीं आती। उनके लहजे में दुख बोलने लगा। मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद आई है, मैं कल से ही ज्वाइन कर लूंगी। कहते साथ ही वो मुड़ गई और आगे बढ़ गई। डॉक्टर हमाद उसे दूर जाता देखते रहे। न जाने क्यों, लेकिन वो उस लड़की से बहुत मुतासिर हुए थे। वो बहुत बुरे हालात से गुजर रही थी, लेकिन उसने डॉक्टर हमाद के इंटरव्यू में बहुत अच्छे जवाबात दिए। और तो और दानीन को उसकी बेटी भी पसंद आ गई। उनके लिए इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती थी। बाबा, मेरी टीचर कब आएंगी? अनाया ने इशारे से अपने बाप को अपने पास बुलाया और मीठी आवाज में पूछने लगी तो उसने आगे बढ़कर उसके माथे पर बोसा दिया। आ गई है आपकी टीचर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मिस दानीन, और आपका नाम क्या है? अचानक से दरवाज़ा खोलकर उसकी टीचर दाखिल हुई तो डॉक्टर हमाद भी मुस्कुरा दिए। वेलकम, उन्होंने सर को हल्का सा खम देकर दानीन को मुस्कुराते हुए कहा। देखें आपकी टीचर आपके लिए क्या लाई हैं। आज आपकी टीचर फर्स्ट डे पर आपके लिए वीट वाले बिस्किट लाई हैं। यू नो, वीट हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। अनाया खाएगी तो उसका दिमाग बहुत तेज़ चलेगा, वो बहुत अच्छे से पढ़ पाएगी। साथ ही साथ मैं आपके लिए ये ब्लॉग्स भी लाई हूँ। इस ब्लॉग से हम पढ़ेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे। उसने अनाया को बिस्किट दिए तो वो बेतहाशा खुश होकर तालियां बजाने लगी और फिर ब्लॉग्स देखकर तो वो उछल कूद करने लगी। दानी ने मुस्कुराते हुए वो ब्लॉक्स उसे पकड़ा दिए और आहिस्ता आहिस्ता करके पहले ही दिन उसे 1 से लेकर 5 तक पहचान करवा दी। आज हमने बहुत पढ़ लिया, मज़ा आया ना?
वो पूरे 2 घंटे उसके पास बैठी रही, पढ़ाने के साथ साथ मस्ती भी करती रही। अनाया जिंदगी में कभी इतना खुश नहीं हुई थी जितना दानीन की हमराही में हुई। डॉक्टर हमाद ने कमरे में कैमरा फिक्स किया हुआ था, जिसके जरिए वो ना सिर्फ बंदों को सुन सकते थे बल्कि उन दोनों की हरकत को भी महसूस कर सकते थे। वो दानीन की अपनी पेशे से मुखलिसी देखकर पल पल हैरान हो रहे थे। पापा, मिस दानीन कब आएंगी? मैं उन्हें बहुत मिस कर रही हूं। वो पूरे 2 दिन उसे पढ़ाने के लिए नहीं आई थी तो अनाया एकदम से जैसे मुरझाए हुए फूल की मानिंद हो गई। बेटा, वो आ जाएंगी। उनके बाबा की तबीयत ठीक नहीं है ना? आपके पास एनी है ना? आप उनके साथ खेला करो। डॉक्टर हमाद जैसे ही ड्यूटी से घर वापस आए तो अनाया उनसे शिकायत करने लगी। वो उसे प्यार से समझाने लगे। मैं कुछ नहीं जानती, बस उन्हें बुलाइए। मैं सुबह से उन्हें बहुत मिस कर रही हूं। बस उन्हें कह दीजिए वो आ जाएं। इस वक्त रात के 10 बज रहे थे और अनाया की ख्वाहिश सुनकर डॉक्टर हमाद सही मायनों में परेशान हो गए। कॉल कीजिए ना कॉल। वो एकदम से जारहाना अंदाज अपनाने लगी और उमूमन जारहाना अंदाज की वजह से उसे दौरे पड़ते थे। डॉक्टर हमाद ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे, क्योंकि जब से दानीन ने उसे पढ़ाना शुरू किया था, 1 महीना होने को करीब था, उसे बिल्कुल भी कोई दौरा नहीं पड़ा था। वो दोबारा ऐसा नहीं चाहते थे। ओके, मैं खुद उन्हें लेकर आता हूं, ठीक है? वो उल्टे कदमों वापस गाड़ी की तरफ आए और दानीन के घर की तरफ गाड़ी बढ़ा दी। हेलो मिस दानीन, आप क्या कर रही हैं? मैं आपके घर के बाहर खड़ा हूं। अनाया बहुत जिद कर रही है, आपसे मिलना चाहती है। मैं आपको लेने आया हूं, आप जल्दी से बाहर आ जाएं। वो इस वक्त बिस्तर पर सोने के लिए जाने ही वाली थी कि जब डॉक्टर हमाद की कॉल सुनकर उसके होश उड़ गए। पर मैं कल आ जाऊंगी, आप उसे प्यार से समझाएं, वो मेरी बात मान लेगी। वो बिल्कुल भी इस वक्त डॉक्टर हमाद का सामना नहीं करना चाहती थी, क्योंकि बाबा की तबीयत बिगड़ रही थी और संभलने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसे में वो उन्हें छोड़कर कैसे आ सकती थी? देखें, आप फिक्र ना करें, सिर्फ 5 मिनट के लिए उससे मिल लें, वरना। वो बिल्कुल चुप हो गए। वरना क्या? वरना उसे दौरे पड़ेंगे और मैं ऐसा नहीं चाहता। आप जानती तो हैं वो स्पेशल चाइल्ड है। डॉक्टर हमाद के लहजे में एकदम से जैसे थकन सी महसूस हुई। ओके, मैं आ रही हूं। उसने फौरन से अपनी चादर उठाई, अपने गिर्द लपेटी और बाहर निकल गई। वो सादा से होलिये में भी डॉक्टर हमाद के दिल में उतर रही थी। न जाने क्यों, जब से अनाया उससे बहल जाती थी, वो अक्सर दानीन के बारे में सोचा करते थे। इस वक्त भी वो सीधा उनके दिल में उतर रही थी। आपको गजरे पसंद हैं? गाड़ी सिग्नल पर रुकी तो एक बच्चा गजरे लेकर आ गया। अचानक से डॉक्टर हमाद ने दानीन से पूछा तो वो उन्हें देखकर रह गई। नहीं, कभी लिए ही नहीं। तो आज मैं आपको दिलवा देता हूं। अनाया को भी बहुत पसंद है, आपके हाथ में देखेगी तो बहुत खुश हो जाएगी। गजरे वाले लड़के से उसने 2 गजरे लिए और एक दानीन की तरफ बढ़ा दिया। वो उसे देखने लगी, उसके अंदर झिझक शामिल थी। ले लीजिए, मैंने दिल से दिए हैं। डॉक्टर हमाद की बात सुनकर उसका दिल एकदम से जैसे जोर से धड़का और फिर उसने अपने दिल को डांट दिया कि वो क्या हरकतें कर रहा है, वो अपने काबू में रहे। दानीन आ गई, दानीन आ गई। अनाया उसे देखकर चलने लगी। उसने आगे बढ़कर अनाया से हाथ मिलाया, उससे खूब सारी बातें की, उसे स्टोरी सुनाई। रात के 12 बज गए। अब उसे फिक्र सताने लगी। अनाया, अब मैं जाऊं? उसने सोती हुई अनाया से सरगोशी नुमा अंदाज में कहा तो वो एकदम से रोने लगी। नहीं, आप मेरी मामा हैं, आप मत जाएं। आप मेरी मामा बन जाए ना। जो मामा होता है फिर वो दूर नहीं जाता, वो यहीं रहता है, हमारे साथ, हमारे पास। डॉक्टर हमाद के पास, अनाया के पास। वो अपने धुन में बोले जा रही थी।
डॉक्टर हमाद ने जब ये सुना तो अपनी जगह जम से गए और दानीन की नजरें तो शर्म से ही झुक गई। दानीन ने एकदम से उसका हाथ छोड़ा और बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिए। डॉक्टर हमाद ने कमरे की लाइट बंद की और फौरन से उनके पीछे आए। आप उसकी बात का बुरा मत मानिए, वो ऐसी ही है, उसने गाड़ी निकालकर दानीन से कहा तो वो खामोशी से सर झुकाकर उंगलियां मरोड़ने लगी। इट्स ओके, मैं समझती हूं। पूरा रास्ता खामोशी की नजर हो गया और फिर वो 1 हफ्ते तक दोबारा से अनाया के पास नहीं जा सकी। मिस दानीन, आप क्यों इतना ज्यादा वक्फा दे रही हैं? अनाया की तबीयत ठीक नहीं है, वो आपको बहुत याद करती है, आपसे बहुत ज्यादा अटैच हो गई है। मेरे लिए उसे संभालना मुश्किल हो गया है, प्लीज मेरी मदद करें। डॉक्टर हमाद का वॉइस नोट सुनकर भी उसने इग्नोर किया था। वो क्या करती, उसके वालिद साहब की हालत ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर वो हुआ जिसका उसने कभी सोचा भी नहीं था। अगली सुबह उसने सोच लिया था कि वो अनाया से मिलने जरूर जाएगी, लेकिन उसके वालिद साहब बेहोश पाए गए और अपनी दोस्त फरहाना के मशवरे पर उन्हें सिटी हॉस्पिटल ले गई, जहां उसकी मुलाकात डॉक्टर हमाद से हो गई। उन्होंने उसके सामने एक शर्त रखी थी जिसे उसे मजबूरन कबूल करना पड़ा। फिक्र ना करें, मैं खुद उनका ऑपरेशन करूंगा, मैं भी हार्ट सर्जन हूं, दिल का इलाज करता हूं। डॉक्टर हमाद ने इमरजेंसी में ऑपरेशन की हिदायत देते कहा तो वो उन्हें देख कर रह गई। ये मुझ पर इतना बड़ा एहसान क्यों कर रहे हैं और बदले में मुझसे इतनी बड़ी कीमत क्यों मांग रहे हैं? वो जले पैर की बिल्ली की मानिंद वहीं चक्कर काटने लगी। उसने उनकी शर्त मान ली थी। मैं आपके वालिद साहब का इलाज करूंगा, उनके इलाज के पैसे भी अदा करूंगा, अगर आप मुझसे निकाह कर लेती हैं। यही मेरी शर्त है और आपको अपने वालिद साहब के इलाज के लिए मेरी ये शर्त माननी पड़ेगी। उसने जब डॉक्टर हमाद की ये शर्त सुनी तो एकदम से 7 आसमान उसके सर पर गिर गए। आपके वालिद साहब बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, थोड़ी देर में उन्हें दोबारा से आईसीयू में शिफ्ट कर दिया जाएगा और 1-2 दिन में उन्हें वार्ड में भी शिफ्ट कर दिया जाएगा। मुबारक हो, उनकी हालत खतरे से बाहर है। ऑपरेशन थिएटर से बाहर आकर जब डॉक्टर हमाद ने उसे खुशखबरी सुनाई तो वो खुशी के आंसू रोने लगी और सजदे में गिर गई। फिर आप मेरी शर्त कब पूरी करेंगी? एकदम से डॉक्टर हमाद की बात सुनकर उसकी पलकें झुक गईं। बाबा सेहतयाब हो जाएं, उसके बाद मैं खुद आपसे इस हवाले से बात करूंगी। उसने ना चाहते हुए भी अपने लहजे को नॉर्मल रखने की कोशिश की, लेकिन उसका लहजा अपनी सख्ती को जाहिर कर चुका था। आपके बाबा का यहां बिल्कुल अच्छे से ख्याल रखा जाएगा। वैसे भी निकाह के बाद आप मेरे साथ रहेंगी, मेरे साथ ही हॉस्पिटल आ जाइएगा। डॉक्टर हमाद ने एकदम से उससे कहा तो वो फटी फटी निगाहों से उनकी तरफ देखने लगी। लेकिन मैं अपने बाबा के बगैर ये कैसे कर सकती हूं? उसने सवाल दागा तो डॉक्टर हमाद के चेहरे पर गुस्से के आसार नजर आने लगे। ये मेरा मसला नहीं है, मैंने आपका काम कर दिया। उसूलन तो आपको मेरी बात माननी चाहिए। अगर आप मेरी बात सीधे तरीके से नहीं मानेगी तो फिर मुझे जबरदस्ती करना भी आती है। वो एकदम से आगे बढ़ने लगे, वो दीवार से लग गई। डॉक्टर हमाद ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और एक एक लफ्ज चबा कर कहा तो वो अपनी जान से काम कर रह गई। मुझे वादा खिलाफ लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं। उम्मीद है कि आपको अब समझ आ गया होगा। एकदम से सूरत हाल का अंदाजा हुआ तो वो पीछे हट गई। दानीन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। उसे डॉक्टर हमाद से इस कदर सख्ती की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। वो बिल्कुल बेरहम हो गए थे। दानीन ने जब उनका थोड़ी देर पहले का रवैया सोचा तो उसके पूरे वजूद में झुरझुरी सी आ गई। तुम गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। एकदम से उनका लहजा भी बदल गया। वो पूरे वजूद के साथ कांप उठी और उनके नक्शे कदम पर चलकर गाड़ी के अंदर बैठ गई। दानीन करीम वल्द करीम खान,
کیا آپ کو ڈاکٹر حماد ولد اعظم خان سے یہ رشتہ قبول ہے؟ قبول ہے۔ اس نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر یہ رشتہ قبول کیا۔ اسے بہت دکھ تھا کہ اس کے والد صاحب کو اس بارے میں بالکل کچھ نہیں پتا۔ ڈاکٹر حماد نے پہلے سے انتظام کر رکھا تھا۔ ان سے بھی ایجاب و قبول کیا گیا اور انہوں نے بھی قبول ہے کہہ کر دانین کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا۔ تم بہت خوش قسمت ہو، تمہیں ڈاکٹر حماد جیسا نرم مزاج ساتھی ملا۔ تم نے ان کا دل جیت لیا، حالانکہ آج تک کوئی بھی ایسا نہیں کر پایا۔ یہ انایا کی آیا عینی تھی۔ تمہیں پتا ہے ڈاکٹر حماد اس قدر کڑوے اس لیے ہو گئے تھے کیونکہ ان کی پہلی بیوی انایا کی پیدائش پر ان دونوں کو چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اس کے نزدیک وہ انایا جیسی اب نارمل بچے کو نہیں پال سکتی، اسی لیے اس نے ان دونوں کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد سے ڈاکٹر حماد شادی نہیں کر سکے تھے۔ دانین یہ حقیقت سن کر ایک لمحے کے لیے حیران رہ گئی۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ بظاہر مضبوط اور سخت نظر آنے والے ڈاکٹر حماد اتنے بڑے امتحان سے گزرے ہیں۔ پھر انایا، اس کی پرورش کس نے کی؟ اس نے ایک دم سے سوال داغا تو عینی نے مسکرا کر کہا، انہوں نے اپنے کیریئر کو داؤ پر لگا دیا اور پورے 3 سال گھر میں بیٹھے رہے، اپنی بچی کو وقت دیتے رہے۔ ان کی گاؤں میں زمینیں بھی ہیں، وہاں سے آمدنی آتی تھی، اسی لیے انہیں کوئی پریشانی نہ ہوئی، لیکن ان کے کیریئر کو داغ لگ گیا۔ یہ تو انہوں نے دوبارہ سے محنت کی، تب کہیں جا کر وہ آج مشہور ہارٹ سرجن بن سکے ہیں۔ 2 سال کی عمر کے بعد انہوں نے مجھے انایا کی آیا کے طور پر منتخب کیا تھا، لیکن پھر بھی بھرپور وقت دیتے رہے تھے۔ پھر انہوں نے انایا کے لیے بہت سی ٹیوٹرز کا انٹرویو لیا، لیکن تم کامیاب ہو گئی۔ وہ اکثر مجھ سے تمہاری باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں انایا کو دانین بہت پسند آ گئی ہے۔ میں کیا کروں، اس کے بغیر سوتی بھی نہیں۔ میں اسے کیسے سمجھاؤں کہ وہ اس گھر میں نہیں آ سکتی؟ تبھی انہوں نے مجھ سے مشورہ کیا اور میں نے انہیں کہہ دیا کہ آپ کا مشورہ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ انایا کو اگر دانین کی بیٹی بنانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو دانین کو اپنی دلہن بنانا پڑے گا۔ انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے یہ قدم اٹھایا ہے۔ تم کچھ بھی غلط مت سمجھنا، وہ دل کے بہت اچھے ہیں۔ ہاں تھوڑے سخت ہیں، لیکن تم جلد ان کی یہ سختی توڑ دو گی، مجھے تم سے پوری امید ہے۔ دانی نے جب یہ سب کچھ سنا تو اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ کوئی بھلا اپنی جان سے پیاری اولاد کو چھوڑ کر کیسے بھاگ سکتا ہے؟ واقعی میں ڈاکٹر حماد ایک بہت بڑے دکھ سے گزرے تھے۔ دانین کو اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ نکاح کے بعد حجلہ عروسی میں پہنچا دی گئی۔ گھونگھٹ کیے وہ دھڑکتے دل کے ساتھ ڈاکٹر حماد کا انتظار کرنے لگی۔ اس نے انایا سے بھی ڈھیروں باتیں کر لی تھیں۔ انایا بہت خوش تھی اور بار بار اسے ممی ممی کہہ کر پکارتی تھی۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ جب اچانک سے دروازہ کھلا۔ اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو ڈاکٹر حماد نظریں جھکا کر اندر چلے آ رہے تھے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر سلام کیا اور گھونگھٹ اٹھایا۔ دانین کی نظریں ہنوز جھکی ہوئی تھیں۔ آپ جانتی ہیں یہ میں نے انایا کے لیے کیا ہے۔ میں بس آپ سے اتنا چاہتا ہوں کہ آپ انایا کو وہی پیار دیں جو پڑھاتے وقت اسے دیتی ہیں، کہ آپ اسے اپنی بیٹی کے روپ میں قبول کر لیں گی۔ انہوں نے سیدھا اپنی بیٹی کے بارے میں بات کی تھی اور ان کی بات میں خدشات بول رہے تھے۔ اگر یہ بات آپ مجھ میں اعتماد میں لے کر کرتے تو زیادہ بہتر ہوتا۔ مجھے آپ کا طریقہ اچھا نہیں لگا تھا۔ دانی نے سوچا کہ یہی لمحہ ہے کہ وہ ڈاکٹر حماد کو بتا دے کہ ان کا طریقہ غلط تھا۔ اگر میں آپ کو یہ بات بتاتا تو شاید آپ وہ ٹیوشن ہی چھوڑ دیتی، اور میں ایسا نہیں چاہتا تھا۔ اس لیے میں نے آپ کے والد صاحب کے علاج کے بدلے آپ سے یہ سب کچھ مانگا۔ کیا میں نے غلط کیا؟ انہوں نے اس کا ہاتھ تھاما اور اپنی جیب سے انگوٹھی نکال کر پہنانے کے ساتھ ساتھ پوچھا۔ مجھے نہیں پتا، وہ بالکل خاموش ہو کر رہ گئی۔ ہم دونوں مجبور تھے، آپ اپنے باپ کی وجہ سے اور میں اپنی بیٹی کی وجہ سے۔ بس ہم دونوں نے اپنی مجبوریوں کا علاج کر دیا۔
کہ آپ کو اب بھی मुझसे शादी पर एतराज़ है। वो इंतहाई नपे तुले अंदाज में गुफ्तगू कर रहे थे। दानीन को पहली बार उनका ये अंदाज अच्छा लगा था। नहीं, मुझे एतराज़ नहीं है, लेकिन दानीन ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। लेकिन क्या? बताएं ना, आपके दिल में क्या है? छुपाए मत, मुझसे कह दें। डॉक्टर हमाद एकदम से बेचैन नजर आने लगे। अगर अनाया को कभी मुझसे कोई तकलीफ पहुंच गई तो क्या आप मुझसे ताल्लुक तोड़ देंगे? उसका सवाल बेसाख्ता था। डॉक्टर हमाद चंद लम्हे उसे हैरानी से देखते ही रहे। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने आपको जॉब कुछ देख कर दी थी, मैंने आपके अंदर सलाहियत देखी थी, तभी आपको जॉब दी थी। अगर ऐसा होता तो मैं आपको कभी ये जॉब नहीं देता। आप वैसे भी अब अनाया की वालदा के ओहदे पर फाइज हैं। आपको पूरा हक हासिल है कि आप उसे सही और गलत की तमीज़ सिखाएं और उसके लिए उस पर थोड़ी सख्ती भी करें। मैं इस मामले में कुछ नहीं कहूँगा। ये आप माँ बेटी का मामला है, मैं भला क्या कह सकता हूँ? वो मुस्कुराते हुए दानीन को भरपूर निगाहों के हिसार में लेकर कहने लगे, क्या मैं सिर्फ अनाया की वालदा की हैसियत से यहाँ पर आई हूँ? दानीन के अचानक सवाल पर डॉक्टर हमाद के लबों पर बेतहाशा जानदार मुस्कुराहट उभरी और वो उसे देख कर रह गए। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी और उस पर मुतजाद उसका खूबसूरत सा सवाल वो उनके दिल में उतरने लगी। जी बिल्कुल, आप अनाया की वालदा होने के साथ साथ मेरी ज़ौजा होने का शर्फ भी हासिल कर चुकी हैं। दानीन, डॉक्टर हमाद, यही आपका तारुफ है। उन्होंने आहिस्ता से दानीन का हाथ पकड़कर उस पर अपनी मोहब्बत की मोहर जब्त की तो वो खुद में सिमटने लगी। मुझे लगता है एनी ने आपको सब कुछ बता दिया है, मेरा राज फाश कर दिया है। हालांकि मैंने एनी को मना भी किया था, लेकिन शायद उसने आपको हर चीज़ के बारे में बता दिया। क्या ऐसा ही है? उन्होंने दानीन के बराबर में बैठते हुए उस पर अपनी नज़रें जमाते पूछा तो दानीन इस पूरे अरसे में पहली बार मुस्कुरा दी। जी ऐसा ही है, एनी ने मुझे सब कुछ सही बता दिया है, ये भी कि आप मुझे पसंद करते हैं और अनाया की आड़ में आपने मुझसे शादी की है। दानीन शरारती हुई तो वो उसे देख कर रह गए। वैसे आप भी कुछ कम नहीं हैं, अक्सर देखा करता था, ड्यूटी से वापस आता था तो चुपके चुपके मुझे देखा करती थी। क्यों, ठीक कह रहा हूं ना मैं? एकदम से उन्होंने दानीन की चोरी को पकड़कर कहा तो वो हंसने लगी। वैसे आप मेरे वालिद साहब को क्या कहेंगे, उन्हें किस तरह मनाएंगे? एकदम से उसे नई परेशानी ने आन घेरा। मैं उन्हें कह दूंगा कि आपकी एक अदद नवासी है जिसकी बिना पर दानीन ने मुझसे शादी की है। वो मान जाएंगे, बिल्कुल भी मना नहीं करेंगे। देख लेना, अनाया को तुमसे ज्यादा प्यार करेंगे। डॉक्टर हमाद ने दानीन का चेहरा अपने हाथों में भरकर कहा तो वो शर्म से सर झुका गई। मुझे यकीन नहीं था कि तुम इतनी जल्दी मुझे कबूल कर लोगी। मुझे लगा था मुझे बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ेंगे, लेकिन तुम एक नेक सीरत लड़की हो, अनाया के लिए कुर्बानी दी है और तो और अपने दिल की बात पर भी लब्बैक कहा है। ये अलग बात है कि मुझसे छुपाया है और शायद खुद से भी छुपा दिया था, तभी आज दिल बहुत ज़्यादा खुश है और हैरान होने के साथ साथ भंगड़े डाल रहा है ना। ऐसी ही बात है ना? डॉक्टर हमाद ने एकदम से उसे झटके से खींचकर अपने ऊपर गिराया तो दानी ने बेतहाशा मुस्कुराहट के साथ अपने आप को उनके सीने में छुपा लिया। मैं वादा करती हूँ, मैं बतौर अनाया की वालदा और आपकी ज़ौजा के आपका सर झुकने नहीं दूंगी। आपको और आपके घर को खुशियों से भर दूंगी। दानी ने भरपूर निगाहों से उसे देखते कहा तो डॉक्टर हमाद ने आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया। यूं दो टूटे दिलों ने एक दूसरे के टूटे घरों की बुनियाद रखी और दोनों जहान की खुशियां समेटने के लिए एक साथ चलने की कसम खाकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर सारी जिंदगी साथ निभाने का अहद कर लिया। इसी दौरान दरवाज़ा खुला और अनाया अपनी व्हील चेयर के हमरा उन दोनों के कमरे में आकर खड़ी हो गई।
मम्मी पापा आप दोनों बहुत ज्यादा प्यारे लग रहे हैं, बिल्कुल मेरे लग रहे हैं। अनाया की बात पर दानीन ने आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया। डॉक्टर हम्माद ने भी उसकी पैरवी की और यूं ये तीनों एक मुकम्मल फैमिली का मंजर पेश करने लगे, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत एहसास था। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।